ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा है? which atom has its electrons in an orbital of the shape shown with principal quantum number 3? तो ये 3 है और 3p है, ठीक है। शक्ल से it's a p orbital. So which one has क्या question has the outermost electron? Outermost electron. Uh, so I think it's going to be chlorine होगा, क्योंकि if you write the electronic configuration of chlorine, that's 17 electrons. 17 electrons is what? It's 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या है 3s2, and then you have 3p, 5, 17 हो गए पूरे, ठीक है। So that's definitely chlorine. बाकियों के नहीं है, ठीक है। If you look at bromine I think is कितना होता है bromine? I think that's 35. तो वो जाके 4p5 बनता है। Calcium is 4s2 maximum. Sodium is 3s1. अच्छा, which atom has the अच्छा अगला, which atom has the same number of electrons as the hydroxide ion? So hydroxide ion, it's OH and it has a charge of -1. So oxygen has 8 electrons, hydrogen has 1 electron, and since it has a -1 charge, uska matlab hai ki there is one extra electron. So that's 9 plus 1, that's 10. So you got a total of 10 electrons. So इनमें से कौन सा है जिसके पास 10 electrons है? That's neon. Look in the pure table. Neon has 10 electrons. As a separate experiments of 5-gram sample of each of the 4 block metals are added to an excess of water. S block metal, ठीक है। तो कौन से होते हैं S block? S block is either group 1 or it's group 2, ठीक है। Remember that कि वो जो पहले दो groups हैं they're S block. Group 3, 4, 5, 6 are all 7, 8p, ठीक है। They're all P block. और बीच में transition metal, that's D block. अच्छा, तो group 1, group 2, it could be any one of them. The gas, अच्छा ये question, gas evolved is collected and its volume measured under the same conditions of temperature and pressure for each sample. Which metal produces the largest volume of gas? अच्छा, largest volume, इसका एक थोड़ा सा हम शॉर्टकट ट्राई करेंगे। largest volume, ठीक है। So that means it has the largest number of moles as well. So it's going to have most moles. तो अगर मोल्स ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। सो मोस्ट मोल्स, दैट्स गोइंग टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट वॉल्यूम्स। मोल्स होते क्या है? मोल्स इज मास डिवाइड बाय द मोलर मास, द mr, or in this case it's going to be the ar, relative atomic mass. तो मोल्स ज्यादा कब होते हैं? when you have most moles or maximum number of moles, when the mr or ar is small, क्योंकि उससे हर सैंपल की जो मास है ना वो तो उसने फिक्स की हुई है, ठीक है। द मास इज फिक्स्ड at 5 grams. So you're basically going to go for the smallest AR or MR, because that's going to give you the most moles of gas. So you've got calcium, potassium, rubidium, and strontium. So ये सारे कौन से ग्रुप के हैं? That's अच्छा, इसके लिए you need a periodic table के I'm going to go for the smallest one. Okay, the one which has the smallest AR or MR. तो पहले दो ही रह जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ना इनकी AR MR ज्यादा है, ठीक है। So calcium is 40.1 to be precise, and potassium is 39. अगर ज्यादा प्रिसाइज होना है तो जाके उसमें देख लो डेटा बुकलेट में। अच्छा, तो आपके पास कैल्शियम इज 40.1, दैट्स 39.1 टू बी प्रिसाइज। स्ट्रोंशियम एंड रुबिडियम दे हैड मच बिगर एआरस, तो उनके मोल्स कम होंगे, ठीक है। तो रिमेंबर, टाइम भी बचाना है, सारों के लिए सॉल्व ना करना, क्योंकि इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो probably I'm going to solve for the first two, ठीक है। And we're going to try and figure out तो हो क्या रहा है, रिएक्शन क्या रिएक्शन है
Okay, they're added to excess water. So calcium, when it reacts with water, what is formed? It forms क्या बनेगा? It's going to form calcium hydroxide, and it's going to give you H2 gas. So the other one, potassium, when it's added to water, it's going to have an explosive reaction. Group 1. Remember, group 1 is not in your course, okay? So it's going to form potassium hydroxide and it's going to form H2 gas as well. अच्छा, तो अब कैल्शियम की अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करूँ ना, there's going to be 2 water molecules and there's going to be 1 H2 gas. ठीक है, that's balanced. ठीक है, so that means 1 mole produces 1 mole of H2. Potassium की इक्वेशन अगर मैं बैलेंस करूँ ना, it's going to be half moles of H2 gas. ठीक है, if I balance this equation, तो हाँ ठीक है, एक ही H डिस्प्लेस हो रहा है, so that's going to be half H2. अच्छा, तो now calcium and potassium have almost the same AR. यानी अगर तो मुझे calculation करने की जरूरत नहीं. I don't need to waste time doing calculations because I would know that they would kind of get the same number of moles. 5-gram sample of this or 5-gram sample of this kind of gives you the same number of moles. लेकिन calcium जो है ना, that's going to produce more H2 gas. ठीक है, वो नजर आ रहा है कि it produces 1 mole of H2 gas while potassium produces half moles of H2 gas. तो इसका आंसर क्या होगा? It's going to be calcium. Calcium is the one that produces the largest volume of gas. ठीक है, so without doing any calculations, एक तरीका है कि you do the calculations for each one of them and find out the volume of H2 gas that is produced, but that is going to take a very very long time. ठीक है, the shortcut is कि वो जो largest ARMR वाले थे ना, वो मैंने वैसे ही निकाल दिए. क्यों निकाले? क्योंकि largest ARMR that will give you moles, that will give you few moles, कम moles आएंगे. If the moles are few, so the volume of gas would also be less. तो इसलिए it would be kind of pointless. ठीक है, कि उनके लिए solve भी करें. और एंड में calcium was the one that would produce the most H2. ठीक है, ये वाला part clear है? रियान clear है? आयजा, हुमैद, is this clear? शियान? Yes, sir. अच्छा, MCQs में remember टाइम बचाना है, कि it's important कि टाइम बचे. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप बैठ के सॉल्व करने लग गए ना, फिर तो वो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें. इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन. या तो इसको स्किप कर लेना, एंड पे कर देना, लेकिन एंड तक ना टाइम हमेशा मसला होगा. So you don't have to solve all moles questions. A lot of times you can just simply figure out the moles, figure out the answer without even solving it. Achha, a student reacts 1 mole of copper with concentrated nitric acid to produce 1 mole of copper 2 nitrate, 2 moles of water, and substance X. No other product is formed. Substance X does not contain copper or hydrogen. What could be substance X? ठीक है, अच्छा, तो the equation is kind of balanced. Okay? 1 mole of copper reacts with water. तो ये लिखा हुआ है 1 mole of copper. It reacts with nitric acid, concentrated nitric acid. So that's HNO3. And uske moles in likhe hue. And it produces what? It produces 1 mole of copper 2 nitrate. So that's CuNO3. And that's going to be twice. Plus 2 moles of water. 2 water ho gaye. And then there is substance X. Acha, and we know that substance X has something to do with N. क्योंकि उसके जो भी options है ना, that it's got no copper in it, just N. अच्छा, so 1 mole of this produces 1 mole of copper nitrate. ठीक है, और 2 moles of water. अब ये देख लो ऑप्शंस में, एक तो शॉर्टकट ये है. अच्छा, अब शॉर्टकट ये कि आप ये कर सकते हो कि एक तो रीडॉक्स इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर सकते हो. मैं उस तरह भी करूंगा, दूसरे तरीके से भी करूंगा, ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, दूसरा ये कि ट्रायल एरर से ना इसको फिट करते जाओ. जो बीच में फिट हो गया वही होगा. जो चीज उसने नहीं बैलेंस की ना, द इक्वेशन is balanced copper, is balanced copper nitrate, is balanced water. He did not balance nitric acid. लेकिन एक चीज कंफर्म है, वो कंफर्म ये कि जो भी ऑप्शंस गिवन है ना, इसमें देयर इज नो H. तो देयर इज नो H ओवर हियर. X has no H क्योंकि ऑप्शंस में H नहीं है. तो इसका मतलब you've got 4 H's over here. तो there should be 4 H's on this side. तो मतलब 4H होना तो मस्ट है. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी बैलेंस हो गया. 4H के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा.
because there is no H in X. X is any one of these. There's no H over here. So that means कि 4 H's यहाँ पे ना, there should be 4 H's over here. So that's balanced as well. So now all of them are balanced except for X. So figure out करो जो चीज बची है ना, that's X. So what is left? What's left is H तो हो गया, पीछे क्या बचा है इसमें? N कितने? That's 4 N's, right? Over here you've got 2 N's. So there should be 2 N's over here. तो N2 हो गया. O कितने बचे? There are 4 into 3, that's 12 oxygens. This is 8 plus 2, 10. So 4 3s are 12. और यहाँ पे कितने हैं? 6 plus 2, 8, सॉरी. तो आपके पास 4 ऑक्सीजन्स बचे हैं. ये कोई कंफर्म कर ले, 4 ऑक्सीजन्स बचे हैं कि नहीं बचे? yes, 4 ही बचे ना. हाँ, तो N2O4 हो गया ना. अच्छा, तो ऑप्शन आ रहा है कि भाई 2 N बचे हुए हैं, वो भी मैं कंफर्म कर लूँ. 4 N's, 2 N's, तो there should be 2 N's, right? 12 oxygens, 6 plus 2, that's 8. So there must be 4 oxygens. ठीक है, तो N2O4. तो कौन सा ऑप्शन होगा? N2O4 तो दिया भाई नहीं है. फिर आखिरी वाला आखिरी वाला होगा, क्योंकि फिर ना यहाँ पे 2NO2 अगर होगा ना, तो that is also N2O4, right? तो it's going to be D. अच्छा, एक तो ये तरीका है, ठीक है. This is one way of doing this, ठीक है. और मैं वैसे देख रहा हूँ दूसरा तरीका इसमें काम भी करता है कि नहीं करता. दूसरा तरीका भी ट्राई कर सकते हैं. दूसरा तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, आसान तो यही था. दूसरा तरीका सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि redox equations, right? So you started off with copper and nitric acid. These were your reactants, ठीक है. And it was forming what? Copper nitrate and water and X, ठीक है. अच्छा, दूसरा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस कर लो, ठीक है. व्हाट इफ दे, इधर तो उसने आसान ही किया था. अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता था. दूसरा तरीका ये कि अगर वो आपको बताता ही ना कि मोल्स ऑफ वाटर क्या है, ठीक है. अगर वो आपको बताता ही ना कि कॉपर नाइट्रेट 1 मोल है और कॉपर जो है 1 मोल है, अगर वो उसने बैलेंस करके ना दिया होता, अगर उसने वैसे ही बस दिया होता कि ये प्रोडक्ट्स हैं, तो लेट्स से ही डिड नॉट गिव यू एनी ऑफ दीज बैलेंसिंग, ये 2 और 1 और वो सब कुछ नहीं है. तो हाउ वुड यू फाइंड एक्स देन? ठीक है, the way you're going to find X is by balancing this redox equation. Copper is going from what? 0 tha. Now it's going to +2. So that means copper, what did it do? It lost how many electrons? It lost 2 electrons. ठीक है, copper lost 2 electrons. अच्छा, N ने क्या किया है? N goes from यहाँ पे कहता है N, वो हमें नहीं पता कि N क्या है अभी. तो मतलब यहाँ पे हमें पता है N की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. सॉरी, इस जगह तो हमें पता है. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N? HNO3 में H is +1, N is X, oxygen is -2 times 3, और सब कुछ इक्वल टू 0, तो X will come out to be equal to +5. ठीक है, तो N जो है that's +5 over here. N यहाँ पे भी +5 है, ठीक है. इस जगह पे NO3 -1 is also +5. तो if this lost 2 electrons, तो N must be gaining 2 electrons. ठीक है, N को 2 electrons gain करने पड़ेंगे, क्योंकि redox में electrons gain and loss they must be equal. तो वो 2NO2 जो है ना, वो इसलिए यहाँ पे मैच करता है क्योंकि अगर मैं 2NO2 डालता हूँ ना, जैसे मैंने ऊपर डाला था, तो N की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे गया, इट्स +4. तो दैट मींस N गेन्स +5 से कितने पे जा रहा है? +4. दैट मींस इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन. लेकिन क्योंकि वहां पे 2NO2 आए हुए, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट इक्वल हो जाएंगे. तो खैर, ये मैं वैसे कंफ्यूजन ही क्लियर किया, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा था, उसी तरीके से सॉल्व हो रहा था.
इस वाले क्वेश्चन में इसको मैं बाद में कर लेना, लेकिन इसको बस यहाँ तक इसको समझना कि मैं खाली रीडॉक्स की ना प्रैक्टिस कराना चाह रहा था कि रीडॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो वो जो उसने बैलेंस करके दी हुई थी ना आपको इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन तो उसी तरीके से सॉल्व होना था, इस तरीके से सॉल्व नहीं होना था, ये खाली प्रैक्टिस के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस दे मस्ट बी इक्वल। So if this lost 2 electrons, n went from +5 to +4, so that it gained 1 electron, लेकिन क्योंकि वहां पे 2 n's थे, so that means it gained a total of 2 electrons. Electrons lost and gained are equal, so this equation basically is balanced electron wise, ठीक है। लेकिन खैर अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए इस वाले को इग्नोर ही करो, वो पहला वाला ही ठीक था इसमें। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, अगला पार्ट, in which structure are three atoms bonded together in a straight line? Straight line, ठीक है। straight line का मतलब है कि इशारों की शेप कर लेते हैं। SF6 के अंदर ना the atoms are all bonded in straight line। 6 बॉन्ड्स होते हैं तो क्या शेप होती है, शेप रिवाइज कर लो। 6 बॉन्ड्स होते हैं तो क्या शेप होती है, इट्स ऑक्टाहेड्रल। एक बॉन्ड टॉप पे होगा, एक राइट साइड पे होगा, एक लेफ्ट साइड पे होगा, एक बॉटम पे होगा, एक पीछे होगा, एंड वन ऑफ देम विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो 6 बॉन्ड्स की शेप क्या होती है, दैट्स ऑक्टाहेड्रल। 4 बॉन्ड्स की क्या शेप, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, स्ट्रेट लाइन वो कह रहा था कि बॉन्डेड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है कि 90 डिग्रीज, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्रीज। तो एफ एस एंड एफ आर इन अ स्ट्रेट लाइन, एफ एस एंड एफ आर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में भी है और 90 डिग्री पे भी है, मतलब इसको इसको so both can apply on this one। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन SF6, SiCl4 when an atom makes 4 bonds, तो क्या होता है, दैट्स टेट्राहेड्रल, ठीक है। 4 बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल होता है। C3H8 इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल। C3H8 का मतलब है कि अच्छा, उसका मतलब है कि दिस C3 then there's another C, वो भी टेट्राहेड्रल है, and then there's another C that is also tetrahedral, so it's CH3, 4 bonds बने, ठीक है। Then the next C is also making 4 bonds, फिर उससे आगे जो C है that's also going to be tetrahedral because it's making 4 bonds। तो C3H8 all of them are making 4 bonds, और इसके अंदर भी polyethene में all of them are making 4 bonds, so they're all tetrahedral। और tetrahedral में they're not in a straight line, they're at an angle of 109.5, ठीक है। और टेट्राहेड्रल का याद रखना कि उसमें फिर 2 और वर्जन आती हैं। वन इज पिरामिडल, के ऊपर अगर लोन पेयर हो then it will be trigonal pyramidal, अगर 2 लोन पेयर्स हो that's going to be bent or V shaped। Next one, okay, aluminum chloride is, which statement of aluminum chloride is correct? It's got a much higher melting point than magnesium chloride due to the small size of the aluminum chloride, remember ke was an exception, it was a covalent molecule। Covalent molecules don't have higher melting and boiling points। Magnesium chloride was ionic, और उसकी रीजन क्या थी कि why was it covalent? कोवलेंट इसलिए था कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में, ये एल्यूमिनियम है एंड दिस इज Cl ओवर हियर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना दैट वाजंट दैट मच, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनका कम था। सो इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस, द मॉलिक्यूल विल एंड अप शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना वो राइट पे होगा ना उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना वो लेफ्ट पे होगा उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो इट्स गोइंग टू बी कोवेलेंट। वाइस वर्सा इफ यू, अगर यहाँ पे देखें मैग्नीशियम क्लोराइड, magnesium was over here and chlorine was over here, so the electronegativity difference was much larger। So if you have a large difference in electronegativity, then the compound is going to be ionic। ionic में होता है कि वो giant ionic lattice होता है, वो सारे ions आपस में एक दूसरे को they strongly attract each other, ठीक है, and they form this crystalline lattice where positive and negative ions are all strongly attracted to each other, which is why they all have high melting points। कोवलेंट के अंदर वो सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है।
तो हायर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा उसका. अच्छा, anhydrous aluminum chloride reacts vigorously with water to form a solution with a pH greater than 7, which is ये hydrolysis की बात कर रहा है. So what happens when वो सारा दोबारा आप खोल लेते हैं अगर भूल गए हो. कहाँ गया हमारा inorganic. What happens when aluminum chloride is added to water? The hydrolysis of a strong aluminum hydroxide plus HCl. ठीक है, तो strong hydrolysis होता है. अच्छा, strong hydrolysis होता है, vigorous hydrolysis. और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl फॉर्म होता है सॉलिड प्रेसिपिटेट विद a strongly acidic solution. So pH उसका ना greater than 7 नहीं होगा, it's going to be less than 7. सारों का हाइड्रोलिसिस एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि NaCl वाटर के अंदर सिर्फ डिसॉल्व होता है, नो हाइड्रोलिसिस. मैग्नीशियम क्लोराइड वेरी वेरी स्लाइट हाइड्रोलिसिस, थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, HCl फॉर्म करता है, फॉर्म्स pH 6.5, बट मोस्टली इट आल्सो डिसॉल्व्स, आयनाइजेस. Aluminum chloride has a strong hydrolysis, forms aluminum hydroxide plus HCl. SiCl4 का भी सेम होता है. PCl3, PCl5 also form strong acids when they dissolve in water, और HCl जब भी form होते हैं, you see fumes of white fumes getting formed. अच्छा, खैर वो अभी Al2Cl6 molecule found in aluminum chloride vapor contains 2 coordinate bonds. That is true. ये dative bond बनाते हैं, इधर इधर बना हुआ भी होगा. Aluminium का outer shell is not complete, ठीक है. It makes 3 bonds, so it's got 6 electrons, but it needs 2 electrons. This other aluminum in the AlCl3 also needs 2 electrons. So Cl has a lot of lone pairs, so they end up forming 2 dative bonds. तो एक AlCl3 दूसरे AlCl3 के साथ जाके जुड़ जाता है. So it ends up forming 2 coordinate bonds, and that's true. तो C आंसर है. और फिर वो आखिरी भी कर लेते हैं. The bonding between aluminum and chlorine is strongly ionic, not ionic. ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया था. It's covalent. As a black powder is a mixture of potassium nitrate, carbon, and sulfur. The mixture reacts as shown. So a seal tube containing black powder has a volume of 10 cm cube. So as a tube का volume है. When all the black powder reacts, the reaction causes a pressure of 2 into 10 power 6 pascals and a temperature of 2500 kelvins. So you got pressure, final pressure. So okay, the volume of the K2CO3 and K2S produced can be ignored. वो कह रहा है सॉलिड को इग्नोर करो, यानी जो भी गैस प्रोड्यूस हुई है ना सील ट्यूब में, दैट इज ऑल ऑफ दिस गैस. मैं अज्यूम करूं कि शुरू में ना, अब उसे ये नहीं बताया कि शुरू में एयर है कि नहीं है. आई डोंट थिंक देयर इज एनी एयर इन इट. तो वॉल्यूम भी पता है 10 cm क्यूब है. आई आल्सो नो द टेम्परेचर. how many moles of KNO3 are contained in the seal tube? Are contained in the seal tube. तो ये फिगर आउट करना है. तो PV is equal to nRT, ठीक है, that's going to give us 2 into 10 power 6 pascals. Volume is 10 cm cube. So it should be in meter cube. So multiplied by 10 power minus 6. अच्छा, is equal to nRT. So n into RT. तो RT इधर ले जाते हैं 8.31 times T is 2500. तो 10 power minus 6 तो खत्म हो गया. पीछे क्या बना? How many moles do you get? कितना है ये? So 9.63 into 10 raised to power minus 4. 9.63 into 10 raised to power minus 4. अच्छा, अब now the issue is कि ये moles जो है ना, it's for all of these gases combined. मतलब we got the moles of gas that is produced. So now we need to find the moles of KNO3. तो रेशियो तो वही होगा कि how many moles of gas are being produced. That's 3 plus 3 plus 2. That's कितना हो गया? 10. नहीं, 8 हो गया. तो according to the equation, रेशियो क्या है?
कि 4 moles of KNO3 they produce 8 moles of gas. मतलब अगर मैं इसको डबल कर लेता हूँ तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है. सो द रेशियो रिमेन्स द सेम. 4 moles प्रोड्यूस 8 moles. तो अगर यहाँ पे 9.63 टाइम्स 10 पर माइनस 4 moles of gas are being produced, इसका हाफ होगा. 8 रेशियो 4 क्या होता है, इसका हाफ होगा ना. तो व्हाट इज हाफ ऑफ दिस? So 4.81. कितना? 4.81. Yes, sir. तो आंसर इसका ए होगा. क्लियर है ये? Yes, sir. और ये क्लियर है ना कि आप कंबाइंड रेशियो भी ले सकते हो कि 4 जो है ना वो 8 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो रेशियो वही रहेगा इक्वेशन में. अच्छा, फॉर विच पेयर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड कंपाउंड? तो ए ही होगा, क्योंकि OH जब साथ साथ होते हैं तो कौन सी बॉन्डिंग होती है? जब O और Right, H okay. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ना वो ज्यादा होगा उस वाले से. सेकेंड में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड हैज OH. तो आंसर तो ए ही है इसका. थर्ड में दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन दिस वन. वो कीटोन है. कीटोन इज जस्ट डाइपोल्स. सीरियल नहीं, ये कीटोन भी नहीं है. ये बस 2 CH3 है, उसके बीच में O है. तो O and H must be bonded together. इसमें भी OH जो है वो इधर bonded है, so they are. Remember this is aldehyde. तो aldehyde में ना O and H are not bonded together. Aldehyde में ना CHO में ना double bond O अलग होता है and the CH bond is separate. तो इसलिए there's not going to be hydrogen bonding, just a simple dipole. अच्छा, अगला वाला कि the equation for enthalpy change is shown. Enthalpy is Q. What is the correct expression to calculate Q? तो उसने कहा है कि enthalpy of formation of अगर हम क्विक फॉर्मूला यूज करें तो कौन सा वाला सही है? तो डी होगा. कौन सा डी? अगर हम Yes, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस वाले यूज करें तो इट्स गोइंग टू बी if enthalpy of formation of the products is given and if enthalpy of formation of the reactants is given. Reactants की zero होगी enthalpy of formation because you don't form elements, ठीक है. So it's going to be product minus reactant, so यही होगा. So it's going to be the enthalpy of formation of the products, which are these. तो D ठीक है, minus the enthalpy of formation of the reactants. लेकिन आपके जो reactants है ना वो zero है because you don't form elements. Elements are already formed, so the enthalpy of formation of elements is zero. तो just remember कि मतलब दो फॉर्मूलाज तो सिंपल, एक बाकी तो हेस लॉ है, लेकिन हेस लॉ के जो दो फॉर्मूलाज हैं वो सिंपल ये हैं कि अच्छा, वो फॉर्मूलाज क्या है कि अगर रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो द फॉर्मूला इज सिंपली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. और दूसरा क्या है कि अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है दोनों की, so it's the combustion of enthalpy of combustion of the reactants minus the enthalpy of combustion of the products. अच्छा, आगे what is the value of the enthalpy change of neutralization? तो enthalpy change तो x है, ठीक है. so it's simply x. अब मुझे तो enthalpy of neutralization क्या होती है? जब वो बात करता है न्यूट्रलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि it's the energy that is released जब क्या होता है 1 mole of तो जब मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं. 1 mole water produce हो when an acid and a base react, right?
तो इट्स एनर्जी रिलीज व्हेन, और हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, और हमेशा वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है unless it's a weak acid or weak base. So it's the energy released when 1 mole of water is produced. तो यहाँ पे कितने moles water produce हो रहे हैं? 2 produce हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हमें वो करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि enthalpy of neutralization is for 1 mole. This one is for 2 moles because 2 moles of water are getting produced. So the enthalpy change needs to be divided by 2. So it's going to be x divided by 2. फिर अगला ये कि a student reacts 4 moles of ammonia with oxygen to produce an oxide of nitrogen and water only. Each nitrogen atom increases its oxidation state by 5 in the reaction. How many moles of oxygen gas react? अच्छा, तो ये वो redox वाला पार्ट आ गया जो पहले हम जिस तरह कर रहे थे ना. अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे? अमोनिया, अच्छा इधर भी उसने बता दिया, वैसे 4 moles है and it reacts with oxygen, so I think that's O2. And what does it produce? It produces water only and an oxide of nitrogen. तो नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड है, तो what is the oxidation state of N over here? क्या है N? कितना हो गया? NH3 में क्या होता है N? तो -3 हाँ, H+1 होता है तो N-3 होगा. और वो ये कह रहा है कि every nitrogen atom increases its oxidation state by 5. So -3 से 5 ऐड करो तो increases by 5, so it's going to be +2, right? +2 होगा. तो और मोस्ट लाइकली फिर उसके साथ क्या होगा? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है ना, तो ऑक्सीजन होगा. तो ऑक्सीजन जो होता है -2 होता है, तो यही उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, NO होगा, ठीक है. इज दैट क्लियर कि इट गोज फ्रॉम -3 टू +2? अच्छा, अब ये कि कितने N है? दैट्स 4N, तो 4 NOs, राइट. तो बस बाकी ऑक्सीजन ही रह गए, 4 ऑक्सीजन है, तो दिस शुड बी, नहीं ऑक्सीजन तो इतना बैलेंस नहीं होगा क्योंकि दिस ऑक्सीजन ऑन द अदर वन एज वेल. से पहले हाइड्रोजन को कर देते हम्म, से पहले हाइड्रोजन को कर देते ना हाँ, 12 12H है हाइड्रोजन तो 6H. अब ऑक्सीजन कितने हैं? 4 + 6 10, तो 5 O2 है, तो 5 moles, ठीक है. इज दिस क्लियर? अच्छा, वो भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस इक्वल हुए हैं कि नहीं. -3 to +5 +2, दैट्स अ गेन ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5. सॉरी, लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स. ये वैसे ही एक्स्ट्रा कर रहा हूँ. -3 to +2, तो आपके पास 4 ends हैं, तो इसका मतलब है ×4 कर दो, सो दैट्स अ लॉस ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हर जगह -2 है, तो शुरू में क्या था? ऑक्सीजन 0 था. इनिशियली इट वाज 0, और प्रोडक्ट्स में ना एवरीवेयर इट्स -2, so that's a gain of 2 electrons, right? Like oxygen neutral went to -2, इधर भी और इधर भी, so that's a gain of 2 electrons. How many oxygens did that? That's a total of 10 oxygens. तो वो 20 electrons gained, so that's equal, ठीक है. 20 electrons lost, 20 electrons gained. खैर anyways, वो बैलेंस करके ना we were able to figure out कि 5 moles है. अच्छा, फिर वो कह रहे हैं वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट के अंदर ना there's a you kill bacteria by adding chlorine. Some ClO-1 are formed. What is the change in oxidation number of chlorine when forming ClO-1? तो क्लोरीन जो है ClO-1, what is the change in oxidation state? 0. इधर क्या है? Cl नहीं पता, X है, ऑक्सीजन क्या है? -2 है, और टोटल चार्ज क्या है? दैट्स इक्वल टू -1. X comes out to be equal to +1. प्लस. ठीक है, तो आंसर क्या है? C है. ये क्लियर है? यस. अच्छा, Kc, ethanoic acid is mixed with ethanol. तो अच्छा, ethanoic acid is mixed, one second,
अच्छा, it's mixed with ethanol. The ethanol is contaminated with a small amount of methanol. ठीक है, ethanol है, and then there's methanol. There are two types of esters that are getting formed. Which statement about the equilibrium mixture is correct? तो वो कह रहा है कि only ethyl ethanoate will be formed because there's much more ethanol present than methanol. जरूरी तो नहीं, वो तो हमें हमें क्या पता, उस मतलब यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि दिस इज इथाइल एथेनोएट. ठीक है, एस्टर्स की नेमिंग याद है कि on both sides you got two carbon atoms, so ethyl and ethanoate. This is methyl ethanoate. तो वो कह रहा है कि वो ज्यादा बनेगा, लेकिन I don't think there's enough information given to figure that out. ठीक है, तो ए का we not sure. तो वो कह रहा है कि केस ये जो KC1 और KC2 जो है ना, इनका जो रेशियो है ना, that's this thing, which might be true. कि जरा केसी का एक्सप्रेशन निकालो ना, पहला वाला. केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? इट्स गोना बी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, सो इट्स इसको मैं एस्टर 1 कह देता हूँ. So it's ester 1 concentration times water concentration divided by the acid, carboxylic acid. और क्या है? Ethanol. Just a second. अच्छा, KC1. KC2 is kind of the same thing. It's the second ester. ये ester 1 था पहला वाला. So this KC number 2, जिसको K2 लिखा हुआ है, that's your second ester concentration multiplied by water concentration or divided by ethanoic acid concentration. And your methanol concentration, जो कि क्या है, CH3 OH है. अच्छा, तो KC1 को KC2 से डिवाइड करना है. इन दोनों को अगर डिवाइड करें, क्या क्या कट हो जाएगा? जो चीज कट होगी ना, दैट्स गोइंग टू बी, सर रिएक्टेंट्स कट हो गए. नहीं ये दो तो कट हो जाएंगे. वाटर निकल गया, एथेनॉल और मेथनॉल नहीं निकल रहे. एथेनोइक एसिड कट हो जाएगा, राइट? इफ आई राइट द एक्सप्रेशन KC1 डिवाइड बाय KC2. हाँ, तो एस्टर 1 डिवाइड बाय एस्टर 2 तो होगा, लेकिन वो भी होगा ना बीच में. एथेनॉल और मेथनॉल भी, वो दोनों आपस में कट तो नहीं हो रहे ना. हाँ, वो दोनों कट नहीं हो रहे. इज दिस क्लियर कि तो ये एक्सप्रेशन नहीं बनेगा? यू नॉट गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन. इज दिस क्लियर? यस सर. अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि ये मैं देख रहा हूँ कि किसी तरीके से वाटर एथेनोइक एसिड तो चला गया. I guess you're never going to get that expression. As if adding water to the mixture will alter the mole ratio of the two esters. Mole ratio of the two esters. If you add water, दोनों का equilibrium किस साइड पे शिफ्ट करेगा? Backwards. So will it alter the mole ratio of the two esters? I guess it should. लेकिन उनका रेशियो आपस में ऑल्टर होगा कि नहीं होगा, वो अगला भी एक पकड़ लेते हैं. Adding methyl ethanoate to the mixture will increase the number of moles of ethyl ethanoate. ये वाला भी ना सी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन डी इज मेकिंग सेंस.
जो डी है आपका मिथाइल एथेनोएट, ये चीज है। वो कह रहे हैं इफ यू ऐड मिथाइल एथेनोएट टू द मिक्सचर तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट करेगा, ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, राइट। तो इफ यू ऐड मिथाइल, ये मिथाइल एथेनोएट है, ठीक है, इफ यू ऐड इट, इट्स दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड्स, ये बैकवर्ड जाएगा। अगर ये बैकवर्ड गया तो एथेनोइक एसिड की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर एथेनोइक एसिड की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम के लिए शिफ्ट करेगा, इट्स गोइंग टू शिफ्ट फॉरवर्ड। तो दैट मेक्स सेंस कि अगर आपने मिक्सचर में ना ये वाला एस्टर डाला ना तो वो वाला जो एस्टर है ना उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। ये एस्टर डालोगे, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, एथेनोइक एसिड ज्यादा हो जाएगा। एथेनोइक एसिड अगर ज्यादा होगा तो फिर वो पहला वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो डी जो है दैट वो 100% होगा, ठीक है। ये क्लियर है, ये तो कंफर्म गलत था। ए और सी क्वेश्चन मार्क था कि वी डिडंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है, क्योंकि देयर वाजंट इनफ इंफॉर्मेशन गिवन। तो ये क्लियर है कि डी इज द आंसर। Yes. अच्छा नेक्स्ट वन, अच्छा इस पेपर के अंदर याद रखना कि पिछला तो कैंसिल हो गया, लेकिन इस पेपर में याद रखना कि ये पेपर जो होता है ना इवनली बैलेंस्ड होता है, इसमें हर चीज के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो नहीं है कि पिछले वाले में तो था ना कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ज्यादा है, इसके अंदर हर चीज वो पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो इसके अंदर जब तैयारी करोगे ना तो आपने हर चीज के ऊपर फोकस करना है, कोई चीज किसी चीज पे आप ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। ऑल्दो ऑर्गेनिक के 7-8 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन फिर भी हर चीज से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, SO3 is manufactured from S2 and O2 in the Carter. The reaction is exothermic, which shows the effects on the equilibrium yield obtained in the contact process of increasing the temperature and adding a vanadium catalyst. So this is your contact process. Remember, Haber and contact process, they're both exothermic reactions. But forward में they're both exothermic. So if you increase temperature, कौन सा reaction favor होता है? Endothermic favor होता है. So the equilibrium is going to go backwards and your yield is going to decrease. और कैटलिस्ट डालने से ना कुछ नहीं होता, कैटलिस्ट डालने से ना बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दे स्पीड अप इक्वली, तो उससे होगा कुछ नहीं अगर आप कैटलिस्ट डालते हो। तो इसलिए वो बी आंसर उसका। Boltzmann curve, if the temperature of the gas is reduced by 10 degrees centigrade, the graph changes shape. क्या होता है इसमें if you decrease temperature? फिर ऊपर की शिफ्ट हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। हाँ, तो लोअर एनर्जीज पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा, और हायर एनर्जी पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। ये बल्कि सही नहीं बनी। अच्छा, कुछ इस तरह करके कुछ होगा, ठीक है। तो what happens to the values of n for the molecular energies x, y and z, number of particles n, x पे number of particles ज्यादा हो जाएंगे, lower energy पे number of particles ज्यादा हो जाएंगे, और y और z पे number of particles क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। So x will have more particles and y and z will have, जो higher energies थे ना वहां पे you'll have fewer particles। फिर next one फिर से मोल्स आ गए कि a 3 gram sample of Na2CO3 powder is stirred in HCl. The volume of CO2 produced is 600 cm cube. Which volume of CO2 is produced if 1 gram of Na2CO3 powder is stirred into 50 cm cube of HCl under the same conditions? क्या कह रहा है वो कह रहा है 3 ग्राम को, तो ये पहली इंफॉर्मेशन क्यों दी हुई है जबकि सॉल्व which volume if the powder is stirred into 50 cm cube of 1 mole per dm cube HCl? हाँ, तो ये पहले का क्या हमने करना है, पहले वाली इंफॉर्मेशन का तो हमें कोई फायदा नहीं है। 1 ग्राम, उसने ये भी नहीं बताया कि इम्प्योर है, 1 ग्राम Na2CO3, सो यू कैन फाइंड द मोल्स Na2CO3 1 ग्राम कितना होता है, 1 ग्राम डिवाइड बाय Na2, तो वो 23 प्लस 23 CO3 C12 हो गया प्लस O3 दैट 16 टाइम्स 3 48। तो
0.00943 significant figures. 0.00943 moles. 0.00. अच्छा 0.00943 moles. तो वो कह रहे 50 cm क्यूब 1 मोल per dm क्यूब HCl. तो कितने मोल्स आए? 50 cm क्यूब 1 मोल per dm क्यूब. 50 0.05 कितना आ रहा है? 50 into 1 divided by 1000. 0.05 0. 05 तो पहले तो एक्सेस में कौन है? मेरे ख्याल से HCl एक्सेस में, राइट? क्योंकि 0.001:2 है ना, तो इसको डबल भी करोगे कितना बनेगा डबल करके? सर 0.025 आएगा Na2CO3 का HCl एक्सेस के अंदर। नहीं, HCl एक्सेस में तो सारा यूज नहीं होगा ना. 0.00943 को डबल करो क्या आता है? 0.01886. जो कि 0.05 से कम है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ इतना ही चाहिए था. यू जस्ट नीडेड दिस मच. यू डिडंट नीड 0.0. खैर निकालना क्या था? उसने कहा था व्हाट इज द. अच्छा मुझे समझ आ गया क्वेश्चन. अब मैं भी बताता हूँ. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड? ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन. मोल्स ऑफ CO2 निकल आएंगे. कितने मोल्स आएंगे? 1:1. सेम होंगे। सेम होंगे. 0.00943. अब बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 किसका निकालोगे? सर 1 मोल इज 24 dm³ वाली चीज अप्लाई करेंगे। मसला ये 24 DM क्यूब क्यों यूज करोगे? डिड ही मेंशन कि इट्स हैपनिंग एट RTP? नहीं सर। तो ये अब इशू है. तो रिमेंबर 24 DM क्यूब वाला पार्ट जो है ना, यू कैन ओनली यूज दैट इफ इट्स एट RTP. ठीक है. तो सिंस दिस इज नॉट एट RTP, उससे क्या, बस ये दोनों हो सेम कंडीशंस में रहे. उसने बस कंडीशंस नहीं बताई कि RTP है और इज इट नॉट एट RTP. ठीक है. तो अब यहाँ पे मसला आ गया कि वो 24 DMQ वाला पार्ट तो यूज नहीं कर सकते. तो इधर हम स्टक हो गए कि हमें मोल्स तो पता लग गए कि हाउ डू यू फाइंड वॉल्यूम. ठीक है, वी हैव नो आइडिया कि वॉल्यूम किसका निकलेगा. तो और PVC को LRTP यूज नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट नो कि भाई प्रेशर क्या है, बाकी चीजें क्या है. यू हैव नो आइडिया. टेम्परेचर का भी नहीं बताया हुआ, कुछ भी नहीं बताया हुआ. तो यहाँ पे वो पहला वाला इस्तेमाल होगा. वो पहले वाले की इंफॉर्मेशन, पहले वाले में उसने वॉल्यूम ऑफ गैस बता दिया, तो हम पहले वाले से ना निकालेंगे कि अब पहले वाले को इस्तेमाल करो जरा. 3 ग्राम Na2CO3 कितने मोल्स बनते हैं? 3 ग्राम Na2CO3. 3 डिवाइड बाय वो सारा सर 0.028 आ रहा है। कितना है? 0.0. 283 अच्छा इसके मोल्स तो वही डाले ना एसिड के. इट्स कितने सर। मोल्स डाल. 0.03 तो पहले तो ये, हाँ अब मसला ये आ गया कि ये एसिड एक्सेस में नहीं, एसिड लिमिटिंग एजेंट है. क्योंकि एसिड तो 0.05 मोल्स ही डाला हुआ है ना. अब मैं रिमेम्बर ये ब्लू में ना, मैं पहले वाले का कर रहा हूँ. उसको रेड वाले के साथ कंफ्यूज ना करो. ठीक है, वर्किंग के साथ. अच्छा 0.0283 मोल्स और ये 0.05 मोल्स. नहीं एक्सेस में ही है. नहीं इसको डबल करो कितने मोल्स आते हैं? नहीं एक्सेस में नहीं है. अब ये एक्सेस में है क्योंकि 2:1 है ना. तो 0.05 इज गोइंग टू रिएक्ट फुली. ये रिएक्ट करेगा उससे आधा, 0.025. ठीक है. तो इज दिस क्लियर कि अब एक्सेस में ये वाला है एक्चुअली? इज दिस क्लियर कि पहले एक्सपेरिमेंट में ये वाला एक्सेस में है? तो 0.05 is only going to react with according to 2:1. 0.05 will react with 0.025, not with 0.0283. वो 0.028 ज्यादा डाल दिए. अच्छा खैर, इसके अब इसके अकॉर्डिंगली फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वुड आल्सो बी 0.025, राइट? तो इट्स गोना बी 0.025 मोल्स. और इस कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है?
वो उसे दिया हुआ है, उसने कहा ये वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करता है ना दैट्स 600 cm3। तो नाउ यू कैन यूज रेशो कि वो जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था ना उसमें 0.025 मोल्स प्रोड्यूस्ड 600 cm3 गैस। आप वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें 0.00943 मोल्स है, तो फिर वो कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करेंगे अगर सेम कंडीशंस में? तो यूज रेशियोज, यू कैन फाइंड आउट व्हाट द आंसर इज। So C answer. 226 आ रहा है, Yes. ठीक है। लेकिन ये क्लियर है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसमें HCl एक्सेस में था, क्योंकि 1:2 उसको डबल भी करो ना तो यू गॉट 0.01886, तो दैट मींस यू हैड अ लॉट मोर HCl देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। यू वर एबल टू फाइंड CO2 मोल्स। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें Na2CO3 एक्सेस में था। 0.05 is going to react with only 0.025, so according to that 0.025 CO2 would be produced, और उसका वॉल्यूम हमें पता था, तो फिर रेशियो लगा के we were able to figure out किसका वॉल्यूम क्या है। अच्छा ये खैर मुश्किल था वैसे, मुश्किल मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम कंज्यूमिंग था। और ये इसमें जो मेन टेक अवे है ना वो ये कि वो मुंह उठा के 24 DM³ ना यूज करना, क्योंकि वो जब तक RTP नहीं है ना यू कांट यूज 24 DM³। और उसका दूसरा ऑप्शन PVC को NRT है, ठीक है। इफ और लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं आप अप्लाई कर सकते थे। अच्छा, next one, sodium iodide reacts with sulfuric acid to form more than one product that contains sulfur. What is the oxidation number of sulfur in these products? um, तो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। अच्छा, ये आयोडाइड का रिएक्शन क्या होता है? आयोडाइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पहले तो वो ये चीज याद रखो कि down the group halides में the bottom two are very good reducing agents because they really like to lose electrons. Bigger ions are more shielded, so they lose electrons easily. Cl-1, F-1, they don't like to lose electrons. तो अगर हम वापस जाए तो Cl-1 does not like to lose electrons, so you only get, अच्छा in this case you only get displacement, और इसको एसिड बेस कहते हैं, ठीक है। मतलब क्लास ऑफ रिएक्शन जो है ये एसिड बेस है, so you get an acid based reaction. अच्छा, दूसरा वाला down the group Br-1, I-1, they really like to lose electrons. तो उसमें क्या होता है? You get a lot of redox reaction, और redox reaction I-1 is a very good reducing agent, तो सल्फर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें there is sulfur -2 as well। यहाँ पे sulfur -2 है, sulfur gets reduced। I-1 जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जा रहा है, it really likes to lose electrons, ठीक है। sulfur is oxidation state 0 over here। तो क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है what is the lowest oxidation number of sulfur? वो -2 होगा। उससे कहा लोएस्ट ऑक्सीजन H2S में इट्स -2। सल्फर भी प्रोड्यूस हो रहा था तब 0 था। SO2 was also getting produced, so that was +4। तो लोएस्ट जो है ना दैट्स गोइंग टू बी -2। और रिमेंबर ये याद रखना है, ठीक है, कि ग्रुप 17 में NaCl only displacement acid based reaction, but down the group Br-1, I-1 you get a redox reaction। Which statement about the elements in period C in group 13 of the periodic table is correct? Group 13 हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। For the element, अच्छा वो कह रहे दोनों element that's in period C in group 13, तो ये कौन सा एलिमेंट है? गैलियम की बात हो रही है, नहीं पीरियड सी, एल्यूमिनियम की बात हो रही है, पीरियड सी एंड ग्रुप 13, सो यू टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम। तो कौन सी स्टेटमेंट एल्यूमिनियम की करेक्ट? इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स इन इट्स पीरियड। नहीं, it does not have the highest melting point. Aluminium has the second highest.
जो एल्यूमिनियम वाला across the period है उसके अंदर silicon has the highest melting point. It has one electron in its shell with principal quantum number 3. The aluminium has 3 electrons in its valence shell. It forms an oxide that reacts with sodium hydroxide. That's true. और ये गलत है. एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है that's amphoteric. वो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है. एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किधर गया? The oxides, aluminum oxides are amphoteric. They can react with NaOH. They can also react with HCl. तो वो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा. और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ना वो स्ट्रांगली एसिडिक है. You get a strongly acidic solution because you form HCl. तो D इसलिए गलत था, C सही है. और अगला पार्ट है student reacts 0.1 moles of each of solid magnesium and phosphorus and sodium separately with an excess of which row is correct. तो वो कह रहा है कि 0.1 मोल्स सारों के. फिर से अब टाइम ही जाया होगा इसमें. सोडियम को रिएक्ट करो 0.1 मोल्स. तो क्या बनेगा? वो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड. तो सोडियम ऑक्साइड के मोल्स जो होंगे वो इससे हाफ होंगे 0.05. मतलब ये 1 होगा तो ये हाफ एन इट, मतलब एन एक ही है ना. अगर बैलेंस करोगे तो इट्स गोना बी हाफ. रेशियो जो होगा 1:1/2 होगा. ठीक है. अच्छा, the other one, magnesium is going to form magnesium oxide. So that's going to be 1:1, so that's 0.1 moles. तो उसके भी 0.1 मोल्स होंगे. अच्छा, फॉस्फोरस एक्सेस ऑक्सीजन है तो फॉस्फोरस जो है इट विल फॉर्म P4O10. तो रेशियो क्या होगा? इट्स गोना बी 4 phosphorus is 1 P4O10. तो अगर ये 0.1 मोल्स होगा तो आगे जाके वो कितना होगा? दैट्स गोना बी 0.1 डिवाइड बाय 4. और फिर आपने करना है कि मास निकालो. तो 0.05 की क्या मास होगी? Na2O. तो क्या होता है? 23 + 16. ये Na2O टाइम्स क्या है? 0.05. तो 3.1. तो पहला तो ठीक है, 3.1 ग्राम्स आ रहा है. Second one, magnesium oxide, 0.1 moles of magnesium oxide. तो 0.1 mole of magnesium oxide. Magnesium oxide कितना होता है? Magnesium oxide is 24.3 magnesium है प्लस ऑक्सीजन है. और कितने? 0.1. तो 4.03. वो एग्जैक्टली 4.03. फिर लास्ट P4O10. मोल्स कितने हैं? 0.1 डिवाइड बाय 4. और टाइम्स MR जो कि P4O10 है तो 31 × 4 प्लस 16 × 10 तो 160 is equal to exactly 7.1 आ रहा है. तो सारे ही ठीक थे इसके. इसका कोई आसान तरीका नहीं था, सारों को सॉल्व करना पड़ा था. और फिर next one is mixture contains magnesium carbonate and barium carbonate only. A sample of the mixture is dissolved in nitric acid to produce a solution. How could the solution be processed? And is अच्छा, mixture के magnesium carbonate and barium carbonate. अच्छा, कह रहा है नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया. बोथ ऑफ देम विल डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड. दे विल फॉर्म व्हाट? मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड बैरियम नाइट्रेट. नाइट्रिक एसिड में कार्बोनेट्स रिएक्ट. अच्छा, उसके बाद क्या है?
So how could the solution be processed into a separate magnesium compound and a separate barium compound? So I think sulfuric acid पहले filter the solid barium sulfate, मतलब ये सही है. सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे ना तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म, क्योंकि ये सॉल्युबल है, तो सॉल्यूशन में ना बैरियम आयंस एंड सल्फेट आयंस विल फॉर्म बैरियम सॉलिड, और उसको आप फिर you just filter it out. ठीक है, remember aqueous solution में if you add barium ions, so if you add sulfate ions, the barium ions will immediately form an insoluble precipitate of barium sulfate. पीछे क्या रहेगा आपके पास फिर? अच्छा, पीछे आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट का, ये गलत इसलिए कि सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो मैग्नीशियम सल्फेट इज soluble, it's not going to form a solid magnesium sulfate, that's not going to happen. HCl के साथ none of them will form a precipitate because barium chloride and magnesium chloride are both soluble. सिर्फ ये barium sulfate था जो कि insoluble है, तो C है. ये क्लियर है? Yes. Yes. तो एक सेकंड रुकना मैं. अच्छा, अब अगला वाला अब कंटिन्यू कर लेते हैं. पेपर स्टार्ट किया, टाइम है थोड़ा सा. अच्छा, a sample of magnesium nitrate is heated in the apparatus shown. The pH of the solution, the trough is measured. अच्छा, मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करोगे क्या होगा? डिकम्पोज होगा. तो और नाइट्रेट्स डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच इज अ सॉलिड. तो ये तो पीछे रहेगा, सॉलिड पीछे रहेगा. And it's going to form two gases. One of them is going to be NO2 and the other one is O2. तो ये जो दो gases है ना, these gases are going to go. अच्छा, now अच्छा, तो NO2 और O2, अब ये इनमें से ऑक्सीजन इज न्यूट्रल, राइट? NO2 तो प्रॉब्ली पानी में मिक्स हो जाएगी, और पानी में मिक्स होने के बाद इट्स गोइंग टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड. हो सकता है सारी सारी मिक्स ना हो. So this, most of the oxygen gas will get collected over here. So the gas collected is tested with a glowing splint. तो रिजल्ट्स बताओ. पीएच ये एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन, तो इट्स गोइंग टू बी एसिडिक. और ग्लोइंग स्प्लिंट ऑक्सीजन गैस का टेस्ट क्या होता है? लाइट्स अप. ठीक है, लाइट्स अप, रीलाइट्स. सो बी आंसर है. ठीक है, ये क्लियर है? Yes. अब आगे कर लो कि एक सेकेंड. अच्छा, result test performed on white crystalline solid X are given below. X is gently heated, it sublimes. इससे तो वैसे शक है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है. अच्छा, the other one is X is shaken with H2O, a color solution forms. Y forms. अच्छा, फिर Y is formed. एक सेकंड होल्ड करना, मैं एक मैसेज कर रहा हूँ.
अच्छा वापस इस पे results of test performed shaken with water color solution of Y is bond with NaOH a gas is given off NaOH के साथ कौन गैस प्रोड्यूस करता है वैसे अमोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं NaOH के साथ गैस ठीक है अमोनियम आयंस दे डू प्रोड्यूस अ गैस विद अच्छा सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट प्रेसिपिटेट ये चलो एक इंफॉर्मेशन मिली है कि Cl आयंस है सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दैट इज डेफिनेटली Cl आयंस NH3 के साथ कलर सोल्यूशन फॉर्म्स तो बस ठीक है फिर डी होगा क्योंकि NaOH के साथ था रिमेंबर कि अमोनियम सॉल्ट्स दे रिएक्ट विद बेसिस अमोनियम आयंस जो होते हैं वो OH आयंस के साथ बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं दे रिएक्ट एज एन एसिड प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस प्लस वाटर तो आपका NH4 जो है दैट लूजेस H+1 एंड द OH एक्सेप्ट्स एन H+1 ठीक है तो यहां से पता लगा कि अमोनिया इधर से कुछ भी नहीं पता लगा ऊपर से भी मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं पता लगा इधर से पता लगा Cl है so that's why it's ammonium chloride as the next one is silicon is heated with an excess of chlorine producing compound J and excess of water is added to the sample of J produced which was correct so silicon is heated in an excess of chlorine तो SiCl4 बनेगा और remember SiCl4 is a simple molecular compound liquid होता है ये colorless liquid होता है तो बस ये simple molecular ठीक है ये दो होंगे is HCl produced when water is added to J तो that is definitely produced क्योंकि SiCl4 को पानी में डालो तो क्या होता है हाइड्रोलिसिस होता है ठीक है SiCl4 when added to water it forms HCl तो हाँ ठीक है तो yes है ठीक है so the answer is D in this case as the next one the catalytic converter 5.6 grams of carbon monoxide reacts with excess of nitrogen monoxide what is produced in this reaction तो कार्बन मोनोऑक्साइड है reacts with what nitrogen monoxide तो कैटालिटिक कन्वर्टर करता क्या है वो हार्मफुल लेस हार्मफुल गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड which is poisonous turns into carbon dioxide and nitrogen monoxide turns into N2 will be half moles according to a balanced equation ठीक है so that's your balanced equation so now we're saying what is produced in this reaction तो पहले तो 5.6 grams of the ये इसके मोल्स निकालो क्या होगा 5.6 divided by carbon is 12 oxygen 16 so it's going to be 5.6 divided by क्या है भाई carbon monoxide that's 12 plus 16 कितना होता है 28.2 moles अच्छा ये उससे वैसी एक्सेस में दिया हुआ है अच्छा एमसीक्यूज में थोड़ा सा ख्याल रखना मोल्स उसमें पेपर 2 में तो मोल्स बिल्कुल भी नहीं होते इसके अंदर सिग्निफिकेंट अ लॉट ऑफ मोल्स ठीक है अ लॉट ऑफ मोल्स इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस ठीक है तो मोल्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छा 0.2 मोल्स तो सारा 1:1 है सिवाय वो आखिरी वाला ठीक है so this is 0.2 moles and that one the last one is 0.1 moles अब इनकी मास निकालो लो तो मल्टीप्लाई बाय एमआर तो कार्बन कितना 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड so that's 0.2 multiplied by 44 8.8 grams और ये क्या होता है N2 is 28 तो मोल्स इनटू एमआर तो मोल्स कितने हैं 0.1 टाइम्स 28 2.8 तो आई थिंक इट्स डी ये वाला अच्छा अगले पे आ जाओ which mixture produces an acidic gas तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है जो कि है ही नहीं यहाँ पे
अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया प्रोड्यूस करेगी। अमोनियम सॉल्ट्स को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो जो अमोनियम होता है ना, और आगे जो बेस होती है हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, ये उससे H+1 गेन करके वाटर बन जाता है, वो अमोनिया इज बेसिक। कैल्शियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस H2 प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज मतलब कैल्शियम क्लोराइड होगा इस केस में, दैट इज नॉट एन एसिडिक गैस। पोटेशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ ये एसिडिक गैस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये वो ग्रुप 17 वाला है कि हमने पढ़ा था कि भी ये जो KCl और सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट करते हो ना, तो H+1 and Cl ions they combine to form HCl gas, और वो फ्यूम्स बन के ना दे एस्केप, और पीछे क्या रह जाता है आपका K2SO4 या KHSO4। तो ठीक है, दैट फॉर्म्स एन एसिडिक गैस। अगला पार्ट 26, which type of reactions are X and Y? अल्कोहल से हैलोजेनो अल्केन कौन सा रिएक्शन है? तो अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर। किधर गया हमारा ऑर्गेनिक? ऐसे हैलोजेनो अल्केन्स वाले reactions, most of them are nucleophilic substitution. So when you go from an alcohol to halogenoalkane, these are all SN reactions, these are all nucleophilic substitution reactions. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का, that's nucleophilic substitution. The second part, what is happening over here? वो फिर से वही है, halogenoalkane turning into a nitrile, that's also nucleophilic substitution. वो ये वाला है कि आपका जो halogenoalkane होता है, इसको बड़ा करना है। अच्छा, आपका जो halogenoalkane होता है, it undergoes 3 substitution reactions. One is with OH, you got a reaction with Cn-1, and you also have a reaction with NH3 as well. तो वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। NaCN एथेनॉलिक होता है और रिफ्लक्स। ठीक है, तो सी आंसर है इसका। अगला वाला, विच कंपाउंड विल रिएक्ट विद LiLH4 टू फॉर्म 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो पहले तो उस पे आ जाओ, LiLH4 करता क्या है? रिड्यूस करता है। LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड मिला उसे, तो इट विल रिड्यूस इट टू एल्डिहाइड, एंड द एल्डिहाइड विल गेट रिड्यूस्ड टू एन अल्कोहल। अगर कीटोन मिला तो कीटोन विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड टू एन अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और आपका जो कीटोन है, दे आर ऑल गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स व्हेन यू ऐड LiAlH4। तो हो सकेगा कौन से इनमें से ऑप्टिकल आइसोमर्स कायरल भी हो? पहले ही लग रहा है कि पहला है क्या ये CH3 CH2 CO CH3। Now when it gets reduced it will turn into an alcohol, तो ये OH बन जाएगा और डबल बॉन्ड खत्म हो गया। Now that's नीचे एक H होगा। अच्छा, and it is chiral. This one is chiral because all 4 groups around this carbon atom are different. So all 4 groups are different. So it's definitely chiral. So A is the answer. That's it. बाकियों के अंदर, I mean, this is a ketone, this one is an aldehyde. They're all going to turn into an alcohol. The carboxylic acid would also turn into an alcohol, but they're probably not going to be chiral. ठीक है, उनको आप try कर सकते हो। Next one is, how many esters have the molecular formula C4H8O2? Ester. What is an ester? Ester is something that's got C double bond O and O. ठीक है, these are all your esters.
So question ye कि like how many esters do you have with 4 carbon atoms, right? So first ester, I put all the 3 carbon atoms on that side. And you can add in the H's. Now that's one. Second, what I can do is I can have a branch isomer of the same one. Like I can have an H over here. The 3 carbons on that side can be arranged in this manner, in a branched manner. These are your H's. That's your H's. That's another H. So that's another ester. Achha, what else? I can change the position of the ester group. What I can do is I can have the esters somewhere in the middle. I can have 1 carbon on this side, and I can have 2 carbons on that side. Now I can't really make a branched version of this one because I can't branch it. Okay. So I can move the position of the ester slightly further to the right. So that's another possibility. Okay. इसके अलावा कोई नहीं हो गया. I think that's 4. How many esters have the molecular formula of this? See, Yogi, I can't move the ester further to the right because then it's going to turn into a carboxylic acid. The ester group can't be at the end. So that's not possible. It has to be somewhere in the middle. So that's 1. I can't change a different one. That's 4. This जो answer, that's going to be 4. फिर ये कि carbon monoxide and NO2 and sulfur dioxide are all atmospheric pollutants, which reaction occurs in the atmosphere. तो atmosphere में ना वो acid rain वाला reaction होता है कि SO2 reacts with NO2. And what happens is that the SO2 gets oxidized to SO3. And the NO2 gets reduced in the same process. So B सही है. NO2 is reduced to NO by SO2. That's exactly what's happening. ठीक है, ये सारा रिवाइज कर लेना. अपने इनऑर्गेनिक कहाँ गए? इनऑर्गेनिक उसमें ये acid rain formation and everything is written. ठीक है, it's so देख लेना उसमें जाके. As the next part, oct-1-ene can be thermally cracked. Which of the compounds can be obtained by thermal cracking of oct-1-ene? Cracking means you get smaller molecules. So any molecule that's smaller than oct-1-ene is possible. All of them are smaller than oct-1-ene. So सारे बन जाएंगे. So cracking up a simple idea ye, all 4 are possible. So A is the answer. Cracking a simple idea ye, you get smaller alkanes, alkenes, and hydrogen gas as well. So any molecule that's smaller, that is a possibility. The structural and stereoisomer should be taken into account when answering this question. How many isomeric alkenes with the formula C5H8 are present in the mixture produced when 1,4-dibromopentane is reacted with NaOH and ethanol? अच्छा, तो 1,4 यहाँ से शुरू होती है कहानी. 1,4-dibromopentane. तो पहले तो ढूंढो कि pentane. What is pentane? Pentane is 5 carbon atoms. Then you've got 1,4-dibromo. So 1 pe bromo and 4 is also bromine. And you got the rest are all hydrogen atoms. ठीक है, इधर भी एक होगा. There's 1H, 1H. अच्छा, तो how many isomeric alkenes are possible? So what happens when NaOH is added ethanolic NaOH? होता क्या है? When you add ethanolic NaOH, ये ethanolic NaOH, the halogenoalkane, it undergoes elimination and it turns into an alkene. यानी जहां पे halogen होगा ना वहां पे you'll have an alkene now. ठीक है, so it's going to be an elimination reaction. It will turn into an alkene. तो वापस इस पे आ जाओ. तो जहां पे आपको वो नजर आ रहा है bromine, it's going to turn into an alkene. So the first one I'm going to draw. So what I'm going to have is I can have this one. के शुरू में there's going to be a double bond. 1, 2, 3, and I'm going to have a double bond over here.
ठीक है, so I'm going to have a double bond over here and one over here. अच्छा, इसका ये कि double bond यहाँ पे भी हो सकता है, it could be on the other side as well, so I could have another molecule which is, शुरू में तो double bond है, then the double bond could be on the, तो ये दो options होंगे. Either the double bond has only one choice, which is this one. यहाँ पे the double bond's got two choices. It's either this one or this one, so it could be either one of them, right? So you could have double bond on the end, or you could have somewhere in the middle, right? और इसके हम H's पूरे कर लेते हैं. That's 2 over here, 1, 1, 1, 2 H's, 2 H's, 1, 1 H, 1 H, 3 H's. As it says, take into account structural and stereoisomers. So structurally, तो ये दो हैं. Now stereo, this one has cis and trans. ये जो double bond है ना, the carbon over here is bonded to two different groups, and the carbon over here is also bonded to two different groups. So if you're bonded to two different groups, that automatically means it's cis trans. यहाँ पे double bond है, it's got two H's, so that's definitely not cis trans. Double bond, two H's, that's definitely not cis trans. तो टोटल 3 हो गए, एक और ये 2 ये. तो आंसर क्या होगा? सी होगा इसका. हुमैद क्लियर है? रियान क्लियर है? जी सर. अच्छा, अगला पार्ट है कि जी the presence of halogen in an organic compound may be detected by warming the organic compound with silver nitrate. अच्छा, halogenalkanes में किसका रिएक्शन सबसे तेज होता है? वो कह रहा है कि quickest to produce a precipitate. Now we know कि silver nitrate Cl ions के साथ it will form AgCl precipitate. We also know कि it will form AgI precipitate with yellow precipitate, या फिर bromine के साथ it's going to form a cream precipitate. तो quickest कौन सा होता है? The weakest bond is the iodine bond. बड़ा atom होता है, bigger atoms they always form weaker bonds. So if they form weaker bonds, the reaction is going to happen very very quickly. तो सबसे quickest जो होगा ना वो इसका होगा कि वो Ag+1 आएगा ना, तो I-1 बड़ी जल्दी टूट के उसके साथ बना लेगा AgI का yellow precipitate. In the case of Cl, the bond is going to be stronger, so it will form the same precipitate AgCl, but the bond is not going to break that easily. ठीक है, तो halogenoalkanes में remember this, iodoalkanes are the ones that have the fastest reaction because their bond breaks very very easily. अच्छा, 17.6 grams of pentamanol is complete. अच्छा, एक ही चीज याद रखना कि अब ये STP की भी कहानी आ गई. STP वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. It's 22. STP जो होता है ना, that's 1 mole of gas occupies 22.4 dm cube. और STP जो है ना, that's ये लिखा भी होता है पेपर के शुरू में. हाँ, ये इंफॉर्मेशन है पेपर के एंड में. अब ये जो फॉर्मेट आ रहा है पेपर का, उसके एंड में ना डेटा बुकलेट क्योंकि नहीं होती, तो ये आर वैल्यूज और ये सब कुछ ना, ये दे गिव इट एट द end of the paper. Some of the values, just very few values. Where molar gas volume at room conditions is 24 dm cube. At STP, ठीक है, it's वो 0 kelvins होता है STP. That's 22.4 dm cube. अच्छा, तो अब ये फिर से बैठ के उसको बर्न करो पहले. पेंटेन 1 ऑल कितना होगा? That's 5 carbon atom, 1 2 3, और OH जो होगा ना वो आखिरी वाले साथ 2 H's होंगे. अच्छा, ये so if you burn it, and he's only asking for the products, right? So the only product, gaseous product, is carbon dioxide. So कितने हैं? That's 5 carbons. तो मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस
उसे कार्बन डाइऑक्साइड के पूछे ना, सो आई फिगर दैट आउट। इसके मोल्स निकालो, 17.6 ग्राम्स डिवाइड बाय एमआर करो, कितना आता है? तो 17.6 डिवाइड बाय पेंटेन 1 ऑल, तो 5 कार्बन्स, तो 60, 5 12 5 60 plus 1 oxygen, so that's 16 plus pentan 1 all. How many hydrogens? That's 3 4 5 6 7 8 9 10. So plus 10, 0.205 moles. तो इसके मोल्स क्या होंगे? That's 0.205 moles multiplied by 5. तो इसको times 5 करो, that's 1.02 moles. And then you have to multiply it by 22.4 molar volume के लिए. तो 22.9 बन रहा है। अब उसमें मैंने एक क्लोजेस्ट है, लेकिन एग्जैक्ट बनना चाहिए, पता नहीं क्यों। सर आपने हाइड्रोजन 10 लिए, 12 नहीं होने चाहिए? 12? ये सर 12 4 होंगे ना? 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 12 है, सॉरी। हाँ ठीक है, फिर वो 22.4 ही एग्जैक्ट आता है वो, इसलिए वो मेरे ख्याल से 1.02 हुआ हुआ है। ठीक है, इसकी एमआर मैंने गलत कैलकुलेट की थी, और ये फिर मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 0.20 आता शायद। अच्छा, अगला वाला, colorless liquid which is used as a solvent will react with Br2। ठीक है, Br2 के साथ रिएक्ट करेगा बिकॉज इट्स एन alkene। ऑक्साइज भी होगा बिकॉज इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, सो इट्स गोइंग टू गेट ऑक्साइज। concentrated KMnO4 के साथ वो डबल बॉन्ड completely टूट जाता है, ठीक है, it forms two different products, right? It gets that strong oxidation of alkenes। तो सारे काम हो रहे हैं इसके साथ। अच्छा, फिर PCl5 वो भी OH की जगह Cl आ जाएगा। So which way is correct? Beer2 room temperature, that's fine. Then Beer2 reacts with double bond, so that's wrong. K2Cr2O7 वो under reflux। Reflux का मतलब है the primary alcohol will turn into an aldehyde which will then turn into a carboxylic acid। तो ये गलत है, it's not going to turn into an aldehyde। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जो है वो एल्डिहाइड पे रोकनी है, तो you would have to distill। It will further get oxidized to a carboxylic acid। So यहाँ पे you should be getting a carboxylic acid, not an aldehyde। अच्छा, कॉन्सेंट्रेट KMnO4 ये भी गलत है कि डबल बॉन्ड ने टूट जाना था कॉन्सेंट्रेट KMnO4 में। कॉन्सेंट्रेट KMnO4, हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4 हो तो the double bond breaks and you get 3 different oxidation products। PCl5 ठीक है, वो OH की जगह Cl आ गया, तो वो PCl5 में यही होता था, ये जो अल्कोहल से वो हैलोजेनो एल्केन, तो PCl5 PCl3 HCl HBr ये सारे यही करते थे। The alcohol would turn into an alkene। अच्छा, which reagents can be used to distinguish these two compounds? Iodoform test हाँ करेगा, क्योंकि iodoform test methyl with a carbonyl group उसको आइडेंटिफाई करता है, जिसमें the methyl breaks away and forms a yellow precipitate of CHI3। यहाँ पे it's not going to happen। methyl with CHOH होता है, तो यहाँ पे methyl तो है, लेकिन जो साथ वाला कार्बन है ना, it's not CHOH नहीं है, ठीक है, it should be this thing।
तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मिथाइल विद CHOH होना चाहिए, तो वहां पे H मिसिंग है, तो that's why iodoform test will be positive for one and not positive on the other one. अच्छा, ये भी डिस्टिंग्विश करेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन, नहीं ये नहीं करेगा डिस्टिंग्विश, क्यों नहीं करेगा, दोनों ही नहीं ऑक्साइज होंगे, क्योंकि अल्कोहल कौन सा टाइप का है, इट्स अ टर्शियरी अल्कोहल. I mean this alcohol over here is a tertiary alcohol. Tertiary alcohols don't get oxidized. होल्ड करना, ये हैंग हो गया. अच्छा, टर्शियरी अल्कोहल्स ऑक्साइज ही होते हैं और वो जो कीटोन है वो भी ऑक्साइज नहीं होता, तो इससे ठीक है, इट्स. अच्छा, तो ये गलत हो गया, K2Cr27 will not be able to, it will not be able to distinguish, both of them don't get oxidized. 2,4-DNPH कर लेगा, 2,4-DNPH कार्बोनाइल ग्रुप्स का टेस्ट होता था, 2,4-DNPH gave you a positive result if you had an aldehyde or a ketone. तो 2,4-DNPH डालते थे, you'll get an orange precipitate for both of them, तो इसलिए आपका रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये करेगा, तो 1 and 3. अल्कोहल के लिए नहीं करेगा वो. अच्छा, जल्दी. A carbonyl compound X reacts with HCl in the presence of NaCN to make a compound. Carbon X does not react with Felling's reagent. इसका मतलब है कि Felling के साथ कौन रिएक्ट करता है, Felling के साथ करता है aldehyde, gets oxidized. Ketones don't. Felling reacts with aldehydes. तो इसका मतलब we're dealing with a ketone first thing. So we're only interested in propanone and butanone. तो butanone start कर लेते हैं. अच्छा, what happens when it reacts with HCN? तो वो जो कार्बन पॉजिटिव होता है वो नीचे से आके CN के साथ अटैच हो जाता है और ऊपर OH बन जाता है, लग जाता है. So this is the reaction of carbonyl compounds with HCN. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं इसे. मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए, CN आके अटैच होता है और ऊपर OH लग जाता है. So you get a cyanohydrin. तो उससे बस कहा था कि इसकी जो MR होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 85. तो बैठ के कैलकुलेट कर लो कि कितनी बन रही है, 4 कार्बन 5 कार्बन हो गए, 6, तो 5 कार्बन कितने हो गए, that's 12 5 60. सर डी होगा. इसकी 85 नहीं बन रही ना, नहीं सर. तो फिर वही होगा, फिर डी ऑप्शन बचेगा. एल्डिहाइड और कीटोन्स तो वैसे निकल, एल्डिहाइड्स वैसे निकल गए थे. अच्छा, 37. Which compound produces butane 2-ol and ethanoic acid on hydrolysis? एस्टर को ब्रेक करना है, तो वो कौन सा एस्टर है जो इन दोनों में टूटेगा, ठीक है. मैं देख के डायरेक्टली बता देता हूँ कि कौन सा है. ब्यूटेन 2-ol ए होगा. नहीं, मेरे ख्याल से, सोचने दो एक सेकेंड. ब्यूटेन डी होगा, रुकना एक सेकेंड. डी होगा, डी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं. नहीं, डी नहीं है, एथेनोइक एसिड है. ए तुमने कहा था, सर वो गलत बन रहा है. ये सॉरी बी है, बी इज द आंसर. इसको जरा ड्रॉ करो ना कि लेफ्ट टू राइट. कार्बन है विद CHS, राइट, फिर CO2 है, C डबल बॉन्ड O एंड O, देन देयर इज CH. अच्छा, CH है और फिर क्या है, फिर ब्रांच है, ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ है, तो C with 3 H's, फिर CH2 CH3. अच्छा, अब क्या होगा, the ester link will break. तो the ester link will break. तो यहाँ पे ना इट्स गोइंग टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे इट्स गोइंग टू फॉर्म एन अल्कोहल. तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो एथेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी एथेनोइक एसिड. अल्कोहल बनेगा ना, तो इट्स
it's butane 2 all, मतलब 4 carbon atoms and the alcohol will be on the second one. तो B है. B को hydrolyze करोगे ना, you're going to get these two products. Is this clear? Yes, sir. Yes. अच्छा, अगला part है कि 2 1-gram samples of wire reacted separately and completely with sodium and with sodium carbonate. The volume of gases produced are collected and measured. तो अच्छा, सोडियम जो होता है ना, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है. सोडियम कार्बोनेट ओनली रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो इसका आंसर जो होगा ना वो फिर बी होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस हाफ हो गया ना. तो सोडियम के साथ यू वर गेटिंग the alcohol released hydrogen gas and the carboxylic acid released hydrogen gas. तो 2 hydrogen gas के molecules बने. With sodium carbonate only this one, the carboxylic acid reacted. तो इसलिए the volume of gas produced was half from the previous case. तो इसलिए B है. पहले वाले में ना Na तो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन सोडियम कार्बोनेट विल नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ देम. तो वहां पे 0 आएगा. इधर ये कि कीटोन तो रिएक्ट नहीं करता, अल्कोहल विल रिएक्ट सोडियम के साथ बट नॉट विद सोडियम कार्बोनेट. और खैर इसलिए आंसर बी है. अच्छा, नेक्स्ट वन डायग्राम. ये क्लियर है ना, ये बात, ये क्वेश्चन क्लियर है? 38. Yes. अच्छा, next one is diagram shows a section of an addition polymer. One of the monomers is propene. What is the other monomer? तो कह रहे एक जो है ना इसमें प्रोपीन है और वो सेक्शन बनाया हुआ, ठीक है, shown you a section of a polymer. So what's the other one? ये वाला ना क्वेश्चन बहुत मुश्किल है वैसे इसको सॉल्व करना. मुश्किल इसलिए कि you would have to find out or figure out the linkages. इसको इस तरह तोड़ना है कि you get a propene and some other stuff, ठीक है. तो remember polymers में क्या होता है? polymers में होता है, ये मुझे याद पड़ा है लास्ट टाइम मैंने किया था, इसमें मैंने बहुत टाइम लगाया था. अच्छा, इसको remember कि कोई भी polymer, let me give you an idea about a polymer. polymer बनता किस तरह है? addition polymer. That you have a double bond breaks and the molecules end up linking with each other. और बीच में से ना डबल बॉन्ड जो है वो चला जाता है. अच्छा, so if you want the double bond back, तो आप क्या करते हो? अच्छा, आप ये करते हो कि वो linkages हटाते हो and you put in the double bonds back again. That is what you do. तो इसके अंदर भी कुछ यही करना है. So we don't know where the linkages are because क्योंकि जब linkage बनता है ना तो it all looks exactly the same. कि जब वो linkage form होते हैं ना तो डबल बॉन्ड तो बीच में से है. अभी जा ही नहीं रहा, एक सेकेंड. अच्छा, जब वो linkages बनते हैं ना तो now you have no idea where the double bond is. कि अगर वापस जाना है maybe the double bond is over here, so you can't be sure about it. ठीक है, तो अब यहाँ पे ना वो straight chain बन गई, लेकिन जो भी होगा double bond, the linkages must be on this chain over here. तो let's start के one of the monomers is propene, ठीक है. What could be the other one? That's the question. अब कैसे ये figure out करना ना. अब मैं let's say linkage तोड़ता हूँ, ठीक है. let's say मैं यहाँ से ना linkage तोड़ देता हूँ. अब अगर मैंने linkage break किया, right, so that kind of means के
और वाइट से ना उसको बिल्कुल ही गायब कर देता हूँ। अच्छा, तो लेट्स से मैंने ये लिंकेज हटा दिया, तो यहाँ पे इन इट्स प्लेस देयर मस्ट बी a double bond, right? There must be a double bond over here, and there must be a double bond over here. Is that clear? तो अच्छा, अब यही चीज ना आगे भी हो सकती है कि वी गॉट अ डबल बॉन्ड, राइट? अच्छा, लेकिन ये ऑप्शन कोई दिया हुआ ही नहीं है। वी डोंट हैव, नहीं, वी हैव एन ऑप्शन, वी हैव एन ऑप्शन जो इस तरह का है, और मुझे लग रहा है कि अच्छा, we've got an option that's similar to this. अच्छा, उससे आगे तोड़ देते हैं कि where can we get propene back again? प्रोपीन कहाँ पे मिलेगा? ये क्या चीज रिपीट हो रही है? The two things getting repeated. इसको तो वापस स्क्रैच से स्टार्ट करें। ए क्यों कहा था? Why do you think it's A? से वो जब मोनोमर तोड़ा था तो ये वाला बन रहा था, और वो सेकंड पहले डबल बॉन्ड के बाद दोबारा प्रोपीन रिपीट हो जाएगा। अच्छा, प्रोपीन मेरे ख्याल से ये चीज रिपीट हो रही है, क्योंकि प्रोपीन उससे कहा हुआ है ना, तो आई थिंक दीज टू आर फॉर्मिंग प्रोपीन, राइट? तो मैं अगर इन पे फोकस करूं कि दैट्स वन ऑफ माय मोनोमर्स, क्योंकि he did say कि वन ऑफ द मोनोमर इज प्रोपीन, राइट? और कहाँ पे प्रोपीन बन सकती है? नहीं, और कहीं पे भी नहीं बन सकती। मैंने लिंकेज तोड़ना है ना, तो what I'm going to do is कि I'm going to focus on these two, ये जो मैंने मार्क किया, I'm going to focus on these two. So that means that this was one propene and this was another propene, right? So what I'm going to do is I'm going to break the linkage उनके बीच में, जिनका साइड से लिंकेज बन रहा है ना, यहाँ पे भी तोड़ दिया लिंकेज, ठीक है, और वो दूसरी साइड पे भी लिंकेज मैंने तोड़ दिया, और इस साइड पे भी ये प्रोपीन के दोनों साइड्स पे ना मैंने लिंकेज तोड़ दिया, ठीक है, ब्रोकन द लिंकेज ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब जो भी चीज है ना, वो ये फिर मिडिल वाला जो है ना, दैट्स प्रॉब्ली योर मोनोमर। लेकिन अब प्रॉब्लम जो असल में वो ये कि once the linkage breaks, you get a double bond, मतलब उस जगह पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। वो जैसा मैंने यहाँ पे शो किया था ना, इफ आई ब्रेक द लिंकेज, मतलब इनको मैं वापस तोड़ता हूँ ना, तो आई हैव टू पुट बैक द डबल बॉन्ड्स, राइट? तो प्रोपीन में भी यही होगा, द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू कम बैक, और वो प्रोपीन बन जाएगा, द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू कम बैक। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम होगा, इट्स द सेम एग्जैक्ट थिंग इज गोइंग टू हैपन, द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू, it's going to come back, ठीक है, the double bond over here is going to come back, लेकिन वहां पे पहले से ही डबल बॉन्ड है, that's the issue. So if there's already a double bond, तो अच्छा, ये मॉलिक्यूल किससे सबसे ज्यादा मिलता जुलता लग रहा है? मेरे ख्याल से इससे लग रहा है, ये जो चीज है ना, that's structured similar to this one. तो हाँ, बस सही है, फिर यही है कि यहाँ पे थोड़ा डबल बॉन्ड वापस आ गया और वहां पे डबल बॉन्ड पहले ही है। Is this clear? Sir, the answer is D from the mark scheme. Confirm it here. D किस तरह हो सकता है? इसका फिर एक दफा देख लें। नहीं, कंफर्म है डी है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट इसके ऊपर, सी के ऊपर मैं just one second.
13 है, हाँ डी है। अब बैठ के सोचो डी क्यों है। प्रोपीन तो मैंने निकाल लिया था, वन ऑफ द मोनोमर्स वाज प्रोपीन, वो मैंने निकाल लिया था। ये स्ट्रेट चेन कहां से आ गई? हमारे वाले में क्या मसला है? मतलब डी पता करने के बाद तो मैं जबरदस्ती फिट भी कर सकता हूँ कि डी है, लेकिन ये हमारे वाले में क्या इशू है? हमारे वाले में प्रॉब्ली जो इशू है ना वो ये कि लिंकेज तोड़ने के बाद ना डबल बॉन्ड आना चाहिए, लेकिन वहां पे पहले से डबल बॉन्ड है, ठीक है। व्हेन यू ब्रेक द लिंकेज देन यू पुट द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे वाले में प्रॉब्ली मसला ये आ रहा था कि जब मैंने वो प्रोपीन का लिंकेज तोड़ा है, अच्छा अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ ना तो मेरे ख्याल से वो इसको ना, वो इसको अपना मोनोमर कह रहा है, दैट्स प्रोपीन। फिर ये चीज दोबारा रिपीट हो रही है। अच्छा उसका जो ये चीज है ना वो ये है। अच्छा वो किस तरह है? अच्छा उस आंसर पता करने के बाद तो वैसे जबरदस्ती फिट करने वाली बात है, लेकिन मैं एक्सप्लेन भी कर दूं कि अच्छा ये आपका बीच में से लिंकेज जो है ना प्रोपीन का, उसके साथ टूट गया, ठीक है। दोनों मोनोमर्स का इधर भी हम तोड़ देते हैं, ठीक है। द लिंकेज हैज बिन ब्रोकन, ठीक है, वो साइडों से। अब जिन जगहों पे लिंकेज टूटी है ना वहां पे डबल बॉन्ड वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ना द डबल बॉन्ड हैज टू कम बैक। सो व्हेन यू पुट अ डबल बॉन्ड ओवर हियर एंड व्हेन यू पुट अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, तो ये बीच वाला डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। वो इसलिए खत्म हो जाता है कि ये वाला कार्बन और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे थे, उन्होंने जाके साइड वाले के साथ बनाना शुरू कर दिया। मतलब इस तरह के, इस तरह के अगर साइड वाले कार्बन आटम का कोई लिंक टूटता है ना, वो आके इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये वाला कार्बन जो है ना बजाय इसके कि वो उस वाले के साथ डबल बॉन्ड बनाए, वो जाके इसके साथ बनाना शुरू कर देगा। और यहाँ पे मतलब इस कार्बन के पास चॉइस होगी ना, वो इधर भी बना सकता है, वो उधर जाके बना देगा, ठीक है। जब उसका लिंक टूटा तो इसने आके अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करने की कोशिश की, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन था ना, जो इधर डबल बॉन्ड बना के बैठा था, उसने इधर कर दिया। और इधर जब लिंकेज टूटा तो इस कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करा था उसने इसके साथ शेयर करने की कोशिश की, तो ये जो बैठा डबल बॉन्ड उधर बना रहा था उसने जाके इधर बना दिया, तो वो बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जब ये कार्बन और ये कार्बन अपनी लिंकेजेस इधर साइड से तोड़ते हैं तो दे फॉर्म अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, दे फॉर्म अ डबल बॉन्ड ओवर हियर। तो बीच वाले जो दो कार्बन है ना वो फिर आपस में डबल बॉन्ड बनाने की बजाय उन्हीं के साथ जाके डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो आपके बीच में ना सिंगल बॉन्ड आ जाता है, और साइड वाले जो दो कार्बन है ना दे एंड अप फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, जो कि फिर एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर बनता है। तो ये वाला क्लियर है? डी तक एक्सप्लेनेशन तक क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर। हमारे वाले में ना सिर्फ जो मसला था ना वो मसला इस वाले डबल बॉन्ड के साथ था, जो हमारा वाला केस था, क्योंकि वो पहले ही बना हुआ था। जब मैं फिर से ना जो हमने किया था ना उसका मैं मसला फिर बता देता हूँ कि हमने जब आइडेंटिफाई किया था हमने कहा था कि अब फिर नहीं हट रहा, एक सेकेंड। अच्छा हमने ये किया था कि हमने कहा था कि हमने किसको प्रोटीन कहा था, हमने कहा था हमने किस प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया था, आई गेस हमने इसको प्रोटीन आइडेंटिफाई किया था, हाँ। और हमने कहा था कि और ये फिर हमारा अगला वाला था, नहीं सॉरी,
हमारा अगला वाला जो था ना, जो हमने किया था, उसकी मैं गलती बता रहा हूँ। वो हमने कहा था वो ये है, हमने प्रोटीन्स आइडेंटिफाई किया था, हमने कहा था ये 2 प्रोटीन्स है, और जो बीच वाला है ना वो हमने आइडेंटिफाई किया था वो ये है। सिर्फ इसमें मसला ये था कि लिंकेज टूटेगा तो फिर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये लिंकेज यहां से टूटेगा और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, वहां पे पहले ही डबल बॉन्ड बना हुआ था, ये मसला था। तो जिसकी वजह से हमने जब ये आइडेंटिफाई किया था ना, उसमें गलती ये आ रही थी कि जब हमने लिंकेज तोड़ा है ना, तो लिंकेज तोड़ने के बाद डबल बॉन्ड बनना है, वहां पे वो पहले से ही बना हुआ था डबल बॉन्ड। तो ये इस वजह से हमारा गलत था, इसलिए वो सही, वो वाला सही था, डी सही था। तो ये क्लियर है, ये लेकिन मुश्किल है, ये क्वेश्चन वैसे ही मुश्किल है, इसको सोचना मुश्किल है, लेकिन क्लियर है, समझ आया था वो डी किस तरह था और हमारे में क्या गलती थी। इज दैट क्लियर? यस सर। यस और ये वाली बात याद रखना कि जब पॉलीमर बनता है तो डबल बॉन्ड टूटता है और बीच में लिंक्स बनते हैं, लिंक्स को वापस तोड़ोगे तो वहां पे उसी कार्बन के साथ दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और इधर जो एडेड, जो एडिशनल मसला था ना, वो ये मसला था कि वो बीच वाला डबल बॉन्ड गायब हो जाता था। मैं फिर से एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कंफ्यूजन थी ना, अरे रिमेम्बर आप लोगों के पेपर में ना एक आध कोई इस तरह का क्वेश्चन होगा। अच्छा, नहीं वो फिर से मैं एक दफा ना वो बता दूं कि, सॉरी कलर चेंज करो, उसके अकॉर्डिंगली ये 2 थे, ये प्रोटीन आ गया दोबारा, ये दोबारा वो चीज आ गई। अच्छा, खाली जो इशू हुआ है वो ये कि ये बीच में से डबल बॉन्ड लिंकेजेस टूटी हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे आना था और डबल बॉन्ड एक यहाँ पे आना था, बीच वाला डबल बॉन्ड खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में शेयर करने की बजाय वो फिर इस वाले के साथ शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी इसके साथ शेयर करेगा, तो ये जो कार्बन दोनों एटम्स है ना बीच वाले, वो जाके डबल बॉन्ड इधर बना लेंगे और वो डबल बॉन्ड इधर बना लेंगे, तो बीच वाला डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो इसको खत्म करें, 40th लास्ट है। अच्छा, साइंटिस्ट चूजेस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे ये आसान है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन व्हिच वन इज द बेस्ट चॉइस में। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं, वो इंफ्रारेड से हो जाएगा, तो ए आंसर है। इंफ्रारेड बॉन्ड्स बताता है ना, इंफ्रारेड बताता है कि भी सीरियल बॉन्ड ओ इस पे वाइब्रेट करता है, ओ एच एस पे वाइब्रेट करता है, एन एच एस पे वाइब्रेट करता है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज तो खैर दोनों से नहीं पता लगती, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मास बताता है, तो मतलब बस मॉलिक्यूल की मास बताता है, जिससे आप तुक्के लगाते हो, उससे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता लग जाते हैं, उससे नंबर ऑफ क्लोरीन्स पता लग जाते हैं आइसोटोप्स की वजह से। तो इन्फ्रारेड से आपको सिंपली वो फंक्शनल ग्रुप पता लग जाता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो वही आंसर है इसका। चलिए ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोबारा। वली, हेलो वली, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा बस एक, मैं 5 मिनट देना, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।